Hello dear students, Assalamu alaikum. This is Mukhtar sir and I welcome all of you with the greetings of new concept here, and that is types of reflex actions on the basis of origin. As per as the types of reflex actions on the basis of whether brain or spinal cord is involved for rerouting the reflex, motor reflex. We have discussed there are two types of reflex actions, and these are cerebral reflex actions and spinal reflex actions. We have discussed that in the previous lectures, and today we shall come across through another classification of reflex actions, and this classification is based on the origin of reflex action. ठीक है कि origin क्या है, चाहे acquired है या inborn origin है. On that basis we have two types of reflex actions here. One is known as conditioned reflex and second one is unconditioned reflex action. पहले हम unconditioned reflex action and second one is conditioned reflex action or actions. So types of reflex actions on the basis of origin. We have two types of reflex actions here. One is unconditioned and second one is conditioned. Unconditioned reflex action क्या है? Unconditioned reflex action. This is also known as inborn reflex action भी बोलते हैं. Inborn reflex action, also known as inborn reflex action. It is also known as inherited reflex action. Inherited reflex action. तो इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन क्या है या अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? It is a reflex action which are present in an individual right from the birth. यानी कि these are those reflex actions which are present in an individual right from the birth. These are reflex actions which are present in an individual right from birth. ठीक है, ये वो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जो इंडिविजुअल के साथ होते हैं जब वो जन्म लेता है. ठीक है, तो उन रिफ्लेक्स एक्शंस को इनबॉर्न इसीलिए बोलते हैं और इनहेरिटेड बिकॉज दीज आर transmitted to the next generation. That is why these are known as inherited reflex actions. These are gained from the parents and transferred to the next generations and can be transferred to the next generations. तो उनको unconditioned reflex action कहते हैं. ठीक है, as far as these reflex actions are concerned, these are specific, predictable, purposeful and have survival value. These are specific, predictable, ठीक है, purposeful and have survival value. Purposeful and have survival value. ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? दीज आर अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्सेस वी कैन से. और जो अब रिफ्लेक्स अनकंडीशनड हो या कंडीशनड हो, हर एक रिफ्लेक्स एक्शन के लिए एक तो रिफ्लेक्स स्टिमुलस होता है, एक तो
स्टिमुलस होता है, दूसरा इसका रिस्पॉन्ड होता है। तो एज पर एज द अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस आर कंसर्न, अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस आर कंसर्न, the stimulus of unconditioned reflex is known as unconditioned stimulus. Unconditioned stimulus क्या है? Unconditioned stimulus is the stimulus of unconditioned reflex. Unconditioned reflex action, इसको बोलते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस। एंड response of unconditioned stimulus, unconditioned stimulus is called unconditioned response, unconditioned response, unconditioned response. So we have stimulus here, like in other reflex actions where we have stimulus and response or reaction processes, and in the same in the unconditional reflex action we have unconditional stimulus, that is stimulus of unconditional reflex, and we have unconditional response, that is response of unconditional that is response of unconditional reflex action. ठीक है, तो accordingly we have stimulus and respond here unconditionally. ठीक है, तो as per as the examples are concerned, unconditional reflex, unconditional reflexes के examples. Sweating during high temperature as well as exercise. Sweating during high temperature and exercise. देखो बेटा क्या है स्वेटिंग, ये जो स्वेटिंग है आरकाना, हाँ Örakjön yeli temperature high şahsen tizged öraki yidhasa çok reflex action तो यूजन अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन छू, ठीक। एंड यहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर जो है दैट इज अनकंडीशनल स्टिमुलस, और उस स्टिमुलस का रेस्पॉन्ड जो है दैट इज आल्सो अनकंडीशनल रेस्पॉन्ड, एंड वो रेस्पॉन्ड है स्वेटिंग. Sweating is here unconditional response. Unconditional response. This is unconditional reflex here. तो unconditional reflex में sweating during high temperature या exercise करते हैं तब पसीना आता है, ठीक है। पसीना sweating high temperature पे पसीना आना, या हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं फिर पसीना आएगा, तो पसीना आना अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है, और हाई टेम्परेचर या एक्सरसाइज यहां पे दैट इज अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अनकंडीशनल रिफ्लेक्स हियर. विड्रॉवल ऑफ लिम्ब्स ऑन बीइंग pricked or touched with hot article. Second example, withdrawal of limbs ठीक है, और on being pricked by hot objects, ठीक है, और touched with a hot object. On being pricked or touched
with hot object. ये भी unconditional reflex action है. Withdrawal of limbs is unconditional response. Withdrawal of limbs. Unconditional respond. ठीक है. Prick or touch with hot object. Prick or touch with hot object आपका unconditional stimulus. Stimulus. Withdrawal of limbs on being pricked or touched with hot object. अगर लिम्ब्स को टच करेंगे हॉट ऑब्जेक्ट तो विड्रा करते हैं, हम पीछे लेते हैं लिम्ब्स, वो रेस्पॉन्ड है, रिफ्लेक्स एक्शन है. तो यहाँ प्रिक करते हैं किसी लिम्ब को, कहीं पे लिम्ब को, तो वहां पे हम लिम्ब को विड्रा करते हैं या कोई इंडिविजुअल लिम्ब को विड्रा करता है, रिट्रैक्ट बैक करता है, तो वो रेस्पॉन्ड है, अनकंडीशनल रेस्पॉन्ड है टू द स्टिमुलस. स्टिमुलस आर हियर प्रिकिंग एंड टच विद हॉट ऑब्जेक्ट. दीज आर अनकंडीशनल स्टिमुलाई. ठीक है. तो नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन जो है दैट इज पैंटिंग ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर. पैंटिंग ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर. पैंटिंग क्या होता है? ये बेसिकली ब्रीदिंग होती है, एक्सेस यानी कि क्विक ब्रीदिंग. क्विक ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्विकली, उसको पैंटिंग बोलते हैं. ब्रीदिंग क्विकली. एक तो नॉर्मल ब्रीथ है, दूसरा कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है कहीं पे, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, ये एक्ट करेगा एज अनकंडीशनल स्टिमुलस दैट रिजल्ट्स द जनरेशन ऑफ अनकंडीशनल रेस्पॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ पैंटिंग. पैंटिंग इज ब्रीदिंग क्विकली. ब्रीदिंग क्विकली या पैंटिंग जो है दैट इज अनकंडीशनल रेस्पॉन्ड. अनकंडीशनल रेस्पॉन्ड टू द अनकंडीशनल स्टिमुलस. हियर unconditional stimulus is high temperature. Unconditional stimulus. ठीक है. तो यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम. क्लोजिंग ऑफ आइज ऑन बीइंग अप्रोच्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. क्लोजिंग ऑफ आइज on being, ठीक है, approached by an object. By an object. जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के सामने अप्रोच होता है, नजदीक आता है, तो एज सुन एज इट विल टेंड्स टू अप्रोच टू अवर आइज, वी क्लोज अवर आइज. ठीक है. जब हमें लगता है कभी कि कोई चीज हमारे आंखों के ओर आ रहा है, और बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम क्लोज आइज करते हैं. ये क्लोजिंग ऑफ आइज इज रेस्पॉन्ड एंड दैट इज अनकंडीशनल रेस्पॉन्ड टू द अनकंडीशनल स्टिमुलस. स्टिमुलस हियर इज सम ऑब्जेक्ट, यानी कि अप्रोचिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अवर आइज. ठीक है. अप्रोचिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आइज इज स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस. क्लोजिंग ऑफ आइज यहां पे रेस्पॉन्ड है, अनकंडीशनल रेस्पॉन्ड. एंड अप्रोचिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आइज इज स्टिमुलस. अप्रोचिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई चीज जब बढ़ेगा हमारे आंखों के ओर, इज टुवर्ड्स आइज, टुवर्ड्स आइज इज स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस हियर. ठीक है. तो नेक्स्ट इज सलाइवेशन ऑन टेस्टिंग द फूड. सलाइवेशन ऑन टेस्टिंग द फूड. एक तो है सलाइवेशन ऑन सीइंग ओवर द फूड, डिलीशियस फूड, और स्मेलिंग द फूड, दैट इज कंडीशनल रिफ्लेक्स.
यहां पे अनकंडीशनल रिफ्लेक्स क्या है? सलाइवेशन ऑन टेस्टिंग द फूड, सलाइवेशन ऑन टेस्टिंग द फूड। जब आपने फूड टेस्ट किया, जब आपने फूड टेस्ट किया तो फूड जो है आपके बकल कैविटी में है, वहां पे वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है। तो सलाइवेशन जो है, सलाइवेशन इज अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, salivation is unconditioned response or unconditional response. Tasting food is unconditional stimulus. Or simply food is here unconditional stimulus, unconditional stimulus. ठीक है, तो these are the examples of unconditional reflex action. Next example of unconditional reflex action is opening of mouth on hearing a loud voice. Opening of mouth on hearing a loud voice, loud sound, loud sound. Opening of mouth यानी कि मुंह को खोलना, ठीक है। कब? जब एक इंडिविजुअल साउंड सुनता है, यानी कि आवाज सुनता है, ठीक है, लेकिन कौन सी आवाज? ये लाउड होती है, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, ठीक है। तो लाउड जो है, जो जोरदार आवाज आती है किसी जगह चीज से, तो उसको सुनकर मुंह का खोलना, ठीक है, या मुंह का खुलना, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है और ये अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है। यहां पे ओपनिंग ऑफ माउथ जो है, दैट इज ओपनिंग ऑफ माउथ इज रेस्पॉन्स, लेकिन अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। हेयरिंग लाउड वॉइस, ये स्टिमुलस है, लाउड वॉइस यहां पे स्टिमुलस है, लाउड वॉइस और लाउड साउंड इज स्टिमुलस, अनकंडीशनल stimulus here. Next example is coughing during swallowing. That is also an unconditional reflex action. Coughing during swallowing. अगर कभी मतलब सवालो, कोई चीज सवालो हमने किया है, तो किसी पर्टिकुलर चीज से के सवाल करने से अगर कफिंग जनरेट होती है, तो ये कफिंग उस टाइम आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्ड है टू द अनकंडीशनल स्टिमुलस, दैट इज swallowing, ठीक है। नेक्स्ट इज पेरिस्टालसिस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पेरिस्टालसिस इन स्मॉल इंटेस्टाइन या ओसाफेगस में जो पेरिस्टालसिस होती है, वहां पे भी जो है दैट इज आल्सो ए रिफ्लेक्स एक्शन। यहां पे इंटेस्टाइन में आपका जो है सेमी डाइजेस्टेड फूड या यानी कि कुछ चीजें सेमी डाइजेस्टेड फूड कहेंगे जो आपके इंटेस्टाइन में है, ठीक है, आंतों में है। अब वो आपके आंतों में है, दैट सेमी डाइजेस्टेड फूड एक्ट्स एज अ स्टिमुलस फॉर व्हाट? फॉर रेस्पॉन्ड, एंड दैट रेस्पॉन्ड इज पेरिस्टालसिस हियर, ठीक है। पेरिस्टालसिस क्या है? इट इज rhythmic contraction and relaxation of the muscles of the intestine or wall of intestine, ठीक है, wall of intestine,
which result is the propulsion of food from one region to the another region of the intestine in the alimentary canal. ये पेरिस्टालसिस होना किसकी बदौलत, गजा के इंटेस्टाइन में दाखिल होते पेरिस्टालसिस होना, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है, जहां पे आपका पेरिस्टालसिस जो है ये रेस्पॉन्ड है, अनकंडीशनल रेस्पॉन्ड और रेस्पॉन्स। तो फूड इन इंटेस्टाइन आपका स्टिमुलस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। पेरिस्टालसिस क्या होता है, rhythmic contraction and relaxation of wall of the intestine here, हम यहाँ पे intestine की बात कर रहे हैं, तो wall of the intestine here in order to propel down the food, in order to propel the food one region to the another region, ठीक है, in the alimentary canal, that is peristalsis। लेकिन यहाँ पे peristalsis आपका unconditional response हुआ in over the stimulus, unconditional stimulus, that was food in the presence of food in the intestine. Hope you have got it.